Assalamualaikum. But in this video lecture, I will start delivering the benign conditions of the vulva outside and the vagina. Right? In the previous few video lectures, I delivered the benign conditions. I started with the benign conditions of the cervix. उसके अंदर मैंने cervical stenosis पढ़ाई थी, Nephrotian follicles and the cervical polyps, everything. And then the benign conditions of the endometrium. In the endometrium, I told you there was Escherman syndrome and the endometrial polyp, and benign conditions of the myometrium. Myometrium में I remember there were fibroids, right? Fibroids and adenomyosis, and then I shifted to the malignant conditions of, endometrium. That was the CA endometrium, and I also delivered the sarcoma of the uterus. Now it's time to discuss the benign conditions of the vulva and vagina. Cervix से नीचे जाते हैं. The benign conditions of the vulva and vagina. Before we study this, you need to have a little recap from your anatomy portion that the vulva outside has got the two outer thick folds of the skin that are the labia majora, and two these smaller folds of the mucous membrane. These are the labia minora, and posteriorly there is the epithelial thickening जिसको हम foresheath कहते हैं, and top above is the clitoris. Okay, top above is the clitoris. So this is the anterior portion, this is the posterior portion, you can see, right? And this outer one is the labia majora, and the inner mucosal membrane is the labia minora, and posteriorly there is the epithelial thickening. This bulb is called foresheath, right? And this anterior this is the clitoris, right? Okay, right. Vestibule is that portion that is present between the two labia minora. This portion is called the vestibule, and vestibule is the area where so many things have to open. Here the duct of the minor vestibular glands open, periurethral glands open, periurethral glands of skinny जिसको हम बोलते हैं, Bartholin glands यहाँ पे open होते हैं, especially which are the major vestibular glands, right? Which are the major vestibular glands. और अगर इसी vestibule में बात करूँ तो आगे there is urethral opening, and posteriorly there is the vaginal opening, right? Posteriorly there is the vaginal opening, and the duct of the Bartholin gland exit at the introitus at 5 to 7 o'clock. मैंने बताया ना कि बेटा मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड है, इसकी डक्ट वेस्टिब्यूल में खुलती है 5 o'clock to 7 o'clock पोजीशन के अंदर. तो मैं दोबारा अगर ये देखें, दो लेबिया माइनोरा हैं, ठीक है, और ये आपका पूरा वेस्टिब्यूल है, और वेस्टिब्यूल के अंदर आगे जो है एंटीरियरली देयर इज दिस इज द यूरेथ्रल मिएटस, एंड पोस्टीरियरली देयर इज द वजाइनल ओरिफिस, ठीक है. दिस इज द वजाइनल इंट्रोइटस. इस इंट्रोइटस के अराउंड 5 o'clock to 7 o'clock जो पोजीशन होती है उसमें मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है दैट इज़ द बार्थोलिन ग्लैंड, उसकी डक्ट ओपन होती है, ठीक है. बाकी इसके अंदर और कौन से ग्लैंड्स ओपन होते हैं? देयर इज़ द ओपनिंग ऑफ द माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड, दिस इज़ द बार्थोलिन ग्लैंड विच इज़ मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है. बाकी माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ओपन होते हैं, पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनिंग, ठीक है, इस तरीके से. देन आफ्टर दिस बेटा लेट्स गो अ लिटिल अहेड. देयर इज रिटन दैट vagina plus vulva makes up the lower genital tract of the female. So if somebody asks you what makes up the lower genital tract of the female, so it is not only the vulva, it is vulva, this entire vulva, जिसमें पूरा लेबिया मजोरा, माइनोरा, फोरशीथ, क्लाइटोरिस सब आ जाता है, वेस्टिब्यूल आ जाता है, और वजाइना भी, ठीक है. अच्छा, जो वल्वा की स्किन होती है बेटा, दिस एंटायर वल्वा, द वल्वार स्किन shows increased trans-epidermal loss of the water. Why? Because the stratum corneum, which is the protective layer, it functions poorly in the vulvar skin. जो वल्वा की स्किन होती है ना ऊपर बेटा, खास करके लेबिया मजोरा की, वहाँ जाहिर सी बात है बेटा, स्किन है तो वही इसके कंपोनेंट्स होंगे, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम एंड एवरीथिंग विच योर स्किन हैज़. लेकिन वल्वा की स्किन में जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो बड़ा पुअरली फंक्शन करती है, और उसमें से ट्रांस एपिडर्मल लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है. अच्छा, वल्वा से रिलेटेड बेटा क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे? वल्वा में बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, दैट इज़ द प्रूराइटस, या वल्वा में स्किन चेंजेस हो सकते हैं जैसे कि लाइकन स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है बेटा, और दूसरी कंडीशन जो कि हम स्टडी करेंगे.
अच्छा, अब कुछ कंप्लेंट्स हैं जो कि वल्वा से रिलेटेड हो सकती हैं। या तो वल्वा में प्रूराइटस हो सकती है, दिस इज़ व्हाट फीमेल कम्स अप विद, that there are lots of itching and the pruritus in her vulva. She may also complain of the vulval pain and the superficial dyspareunia. I'll talk about everything, that this is just a differential diagnosis कि वल्वा में ये कंप्लेंट्स हो सकती हैं। वल्वल पेन जो है कौन सी डिजीज़ में होता है, इसको डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया किस कंडीशन में होता है, इसको डिस्कस करेंगे। प्रूराइटस की होती है वल्वा में, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी टेबल की फॉर्म में इसको सेपरेट करने के लिए ये 3 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो सकती हैं। वल्वा में प्रूराइटस जो है दैट इज़ इचिंग, खारिश का होना, ठीक है। So this may be due to infections like the Candida and the Trichomonas vaginalis. These are the bacterial infections of the vulva that can cause pruritus, or other conditions that can cause vulval pruritus that includes the lichen sclerosis, which I have delivered a detailed lecture in the pathology, or some other skin condition like the eczema and the vaginal intraepithelial neoplasm, that is the pre-malignant condition of the vulva vagina. So they can cause the vulval pruritus, and also the contact dermatitis, that is the eczematous condition, which can cause the vulval pruritus. So these are some causes which can cause pruritus of the skin of the vulva. And why there is pain in the vulva? It may be due to the candidal infection. Similarly, due to the skin conditions like the lichen sclerosis, eczema, vaginal intraepithelial neoplasia. It may be due to the vulvodynia, which I'll discuss in detail, and it may be due to the infection of the Bartholin gland, right? Bartholin gland. And then comes the superficial dyspareunia. Superficial dyspareunia, that is the painful intercourse. But there is a difference between the deep dyspareunia and the superficial dyspareunia. Superficial dyspareunia is the pain during intercourse when the penetration is just superficial. The penis has not gone far away into the cervix. The penis is just right up above the vulva or the vagina. Then if there is pain, this is called the superficial dyspareunia. It is said to be deep dyspareunia when the pain occurs only when the penis has gone right into the deep into the vagina or the cervix. But if only the pain occurs when the penis is right on the vulva or superficially in the vagina, this is called the superficial dyspareunia. क्यों इंटरकोर्स पे पेन होता है? लाइकन स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, वल्वोडीनिया की वजह से। आई टोल्ड यू वल्वोडीनिया, आई डिस्कस अबाउट दिस। वल्वा में अगर फिशर्स हैं उस वजह से, अगर वल्वा में स्किन ब्रिजेस हैं, जाहिर सी बात है वल्वा बहुत सुपरफिशियल चीज़ है, अगर उस पर ब्रिजेस होंगे तो ऊपर जब पीनस ऑब्वियस सी बात है पेनिट्रेट होगा तो इट विल कॉज पेन, दैट इज़ डिस्पूरियोनिया। तो ये तो कुछ सिम्टम्स है ना, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है। हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रूराइटस को, हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन कॉज है, सबके अंदर कॉमन कॉज है। लाइकन स्क्लेरोसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आगे सारी चीज़ें डिस्कस, बार्थोलिन ग्लैंड के सिस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉजिंग द वल्वल पेन। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट बेटा। I hope it is visible and not really dull. One thing is the vulval itching या pruritus या discomfort, एक ही बात है। Talking about the age of presentation of this condition, it can occur at any age, but it occurs mostly in the postmenopausal woman, right? It can occur at any age. You, I can suffer from the vulval pruritus, but mostly it occurs in the postmenopausal woman. Why vaginal pruritus? पीछे भी मैंने बताया कुछ causes, इसकी मल्टीपल etiologies हो सकती हैं। एक तो हो गया वल्वाइटस। वल्वाइटस के कॉजेज़ क्या बताया था मैंने? क्लेमाइडिया बताया था, ट्राइकोमोनास बताया था, ठीक है, ये इन्फेक्शन थे ना। और इसके अलावा लाइकन स्क्लेरोसिस, और एक और कंडीशन है एट्रोफिक वजाइनाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना which is characterized by the atrophy of the vagina. So there are multiple etiologies behind the pruritus of the vulva, जिसमें से सबसे बड़े कॉजेस जो हैं वो तो वल्वाइटस है, दैट इज ड्यू टू द क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास या फिर लाइकन स्क्लेरोसिस। देयर इज कंडीशन कॉल्ड द नॉक्टर्नल इनवॉलेंट्री इचिंग. दिस कैन इवन कॉज द डिस्यूरिया, obviously because urine burns the vulval skin. So this, look, pruritus in the vulva beta can occur at any time in the day, but there is a specific type of the vulval pruritus that occurs only during the night. That is called the nocturnal involuntary itching. That will surely cause the dysuria. अगर जाहिर सी बात है बेटा, वल्वा में अगर किसी किस्म का लयन है, ठीक है, जो वल्वल प्रूराइटस करा रहा है,
और वहीं से अगर यूरिन पास होगा, बिकॉज यू कैन सी दिस इज द वल्वा, दिस इज लेबिया माइनोरा, you can see how close the urethral meatus and the vaginal orifice are. Obviously, because there is, some condition in the vulva, it may be infection, it may be anything which is causing vulval pruritus. So if urine comes out of this urethra and it hits the skin of the vulva, it will surely cause burning sensation. इसमें कोई rocket science है ही नहीं, ठीक है? Okay, now what should we do to get rid of this vulval pruritus? कैसे बचा जाए इससे? रिडक्शन इन एलर्जेंस, नंबर 1 थिंग। अगर आपको लगता है आपकी वल्वा में इचिंग है, बहुत ज़्यादा प्रूराइटस है, खारिश है बहुत ज़्यादा, इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, लाइकनेस क्लोरोसिस भी हो सकती है, इट कैन बी वॉट एवर वी डिस्कस्ड। बट हाउ टू रिड्यूस द इचिंग? नंबर 1 थिंग इज़ एलर्जेंस का एक्सपोजर कम से कम करो, जैसे कि डिस्करेज वुमेन फ्रॉम वॉशिंग विथ एनी सोप और डिटर्जेंट which disturb the bacterial balance of the vagina and can cause vulval dermatitis. Do not wash your vulva with any soap, with any detergent, क्योंकि सोप और डिटर्जेंट से वॉश करने से क्या होगा कि जो वल्वा की स्किन है उसका जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है उसकी जाहिर सी बात है पीएच अल्टर हो जाएगी। सॉप जो होते हैं कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ अल्कलाइन होते हैं, तो वो पूरा इन्वायरमेंट, पूरा मीडियम जो है वल्वा का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल फ्लोरा जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और दे कैन कॉज सम इन्फेक्शन, दैट इज़ द वल्वल डर्माटाइटिस। एंड इनकरेज द वुमेन टू वियर कॉटन अंडरवियर, encourage women to wear cotton underwear rather than all other the undergarments she uses. So if you have vulval pruritus, due to any reason, and if you feel even dysuria has to occur, not because of the urinary problem but because of the condition of the vulva. So firstly you need to do is to reduce the allergens. Okay, number 2 is recurrent use of the antifungals, especially the clotrimazole cream and the pessaries. This can soothe in the initial stages, but later it can precipitate the hypersensitivity reaction, so further exacerbating the symptoms. आपने एलर्जेंस को रिड्यूस किया, उसके बाद एज पर यूर 10 टीचर्स गायनेकोलॉजी यू नीड टू यूज़ एंटीफंगल्स, जैसे कि क्लोट्रामाजोल की क्रीम या पेजरी जो कि वजाइना में रखते हैं। इससे शुरू के सिम्टम्स सही हो जाते हैं, लेकिन जो रिकरेंट यूज़ होता है एंटीफंगल्स का, उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है और सिम्टम और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे वल्वा की स्किन के, ठीक है? ओके, लो फेरेटिन, बिकॉज 5% ऑफ द वुमेन विद द लो फेरेटिन प्रेजेंट विद द वल्वल प्रूराइटिस. सो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? प्रोवाइड द पेशेंट विद द फेरेटिन, क्योंकि फेरेटिन अगर डेफिशिएंट होगा तो वल्वल प्रूराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है. तो हमने अभी तक ये समझा कि वल्वल प्रूराइटिस इचिंग या डिस्कम्फर्ट एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी भी एज में हो सकती है, खास करके पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन में ज़्यादा होती है. इसकी मल्टीपल एटियोलॉजीज हैं, उसमें से इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्लेमाइडिया का ट्रैकोमेटिस का जिसको हम वल्वाइटिस कहते हैं, लाइकनेस क्लोरोसिस भी हो सकती है, एट्रोफिक वजाइनाइटिस, कुछ भी हो सकता है. लेकिन किसी भी वजह से वजाइनल प्रूराइटिस है, उसमें आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप एलर्जेंस को ख़त्म करें. ठीक है, वो कैसे करेंगे? आई टोल्ड यू. एंटीफंगल्स यूज़ करें इनिशियल स्टेज में और फेरेटिन प्रोवाइड करें पेशेंट को, क्योंकि फेरेटिन अगर डेफिशिएंट है तो वल्वल प्रूराइटिस प्रोमोट होती है. ठीक है बेटा, इस तरीके से. If there is the genuine case of the chlamydial infection, then it should be treated with the course of 150 milligram clotrimazole nightly over 3 जो है consecutive nights, and the oral fluconazole, which is the second line treatment. What I want to tell you that if you know the exact cause of the vulval pruritus, if you know the exact cause of the vulval pruritus is the chlamydial infection, then what you have to do is just to provide the prophylactic antibiotic, which is the 150 milligram clotrimazole रात के टाइम पे 3 कंजिक्यूटिव नाइट्स में. ठीक है, और अगर क्लोट्रामाजोल ना सही तो फिर सेकंड लाइन जो ऑप्शन है वो ओरल फ्लूकोनाजोल है. चलें जी, डॉक्टर साहब अगर आपके पास एक पेशेंट आती है, किसी भी एज की है या फिर चलें पोस्ट मेनोपॉजल है, वो कहती है डॉक्टर साहब मुझे वल्वा में बहुत ज़्यादा प्रूराइटिस, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और कभी कभार तो मैं जब यूरिन पास करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है. तो व्हाट शुड बी द काउंसलिंग यू विल बी डूइंग एंड द मैनेजमेंट? सबसे पहले यह बात आपको उसको ये कहेंगे कि आपने जो है एलर्जेंस को रिड्यूस करना है. अगर आप वल्वा वजाइना को वॉश करते हो सॉप से, डिटर्जेंट से, तो वो ना करें, सादे पानी से वॉश करें, कॉटन अंडरवेयर का इस्तेमाल करें.
उसके अलावा आप उसको कहेंगे कि अपनी डाइट में फेरेटिन का इस्तेमाल बढ़ाएं और उसको आप एंटी फंगल पे रखेंगे, ठीक है। एंटी फंगल आप कौन सी यूज़ करते हैं? क्लोट्रामाजोल। क्लोट्रामाजोल जो है खास करके आप 150 मिलीग्राम जो है 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स में अप्लाई करते हो। क्लोट्रामाजोल का क्रीम होता है, वो क्रीम जो है आप वल्वा के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ा यू नो एक people, I don't know why they do not feel comfortable applying cream over the vulva. So what we do is we provide the patient with the oral fluconazole, which is as effective as the clotrimazole, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप वल्वल प्रोराइटस को ओरल फ्लूकोनाजोल जो है वो बड़ी सारी दवाएं आती हैं उसकी, यू नो फोनेज एंड एवरीथिंग, यू नो ब्रांड नेम्स. So this is about the this is about the vulval pruritus, beta. Okay, so let's talk about another condition of the vulva, that is lichen planus at number 2. Lichen planus at number 2. Lichen planus of the skin of the vulva. By the way, lichen planus we have discussed in the dermatology as well. That is the thickening of the skin, hyperpigmentation of the skin. It's an autoimmune disorder. कॉबनराइजेशन फिनोमेना देखने को मिलता है. वैसे तो वल्वा की लाइकन प्लेनिस इसका कोई नॉन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर पता नहीं है, बट प्रेशर कैन इंक्रीज द सिम्टम्स. फॉर एग्जांपल द रिस्ट्रिक्टिव अंडरवियर. देखें, जब आप ये पैथोलॉजिक कंडीशंस पढ़ते हैं ना, तो इनकी पैथोजेनेसिस समझनी हो ना, तो यू गो टू पैथोलॉजी लेक्चर्स. हियर यू विल बेटर अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट पार्ट, राइट, बिकॉज यू आर स्टडिंग द सर्जरी नाउ. सो लाइकन प्लेनिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. क्यों होता है इसकी मज़ीद तफसील आपको कहाँ मिलेगी बेटा? पैथोलॉजी में मिलेगी. लाइकन प्लेनिस अगर किसी के वल्वल स्किन पे डेवलप होता है तो वैसे तो उसका कोई इतना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है नहीं जो हम कहें कि अच्छा ये होगा तो लाइकन प्लेनिस के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे. लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर ये वल्वा की स्किन है, ये वल्वा की स्किन है, और अगर इस पर आप कोई प्रेशर देंगे तो प्रेशर की वजह से वल्वा की स्किन पे मौजूद जो लाइकन प्लेनिस है उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे. अब प्रेशर कैसे दिया जा सकता है? रिस्ट्रिक्टिव अंडरवेयर यूज़ करके, जाहिर सी बात है, टाइट अंडरगारमेंट्स यूज़ करके ऑब्वियसली. एक लाइकन प्लेनिस का पेशेंट बेटा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? शील बी कंप्लेनिंग ऑफ द प्रूराइटस इन द वल्वा, सुपरफिशियल डिस्पेरियूनिया, and there are some lesions on the vulva which can be the longitudinal lesion, annular, ulcerative, hyperpigmented, or the bullous lesions, right? And the lichen planus may also cause the vaginal stenosis that will lead to the sexual dysfunction. बेटा ये है, अब this is the labia minora, this is the labia minora, this is the urethral meatus, this is the vaginal opening. So what happens is, if there is lichen planus on the skin of the vulva, so it will be presenting with the vulval pruritus. Number one thing, पूरी वल्वा की स्किन में बहुत ज़्यादा खारिश का होना, और जाहिर सी बात है सुपरफिशियल डिस्पेरिनिया होगी क्योंकि लेजिन सुपरफिशियल है. जस्ट पीनिस हैज़ टू हिट ओवर द वजाइना, इट विल कॉज पेन. यहाँ पे लेजेंस भी हो सकते हैं लाइकन प्लेनिस के, यहाँ बुल्ला बन सकते हैं, बुल्ला नहीं बने तो कुछ लॉन्गिट्यूडनल लेजेंस, एनुलर रिंग लाइक लेजन बन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से. और लाइकन प्लेनिस के केस में जो वजाइनल ऑरिफिस है वो बहुत ज़्यादा स्टीनोस हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है. इसकी वजह से भी सेक्शुअल डिसफंक्शन हो सकता है. ऑब्वियसली पीनिस कैन नॉट गो थ्रू दिस नैरो ओपनिंग. व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ द लाइकन प्लेनिस? वी कैन सी, because it is an autoimmune disorder, so you have to provide with the steroids. That is the high dose topical steroid. If there is the vaginal stenosis, इस vaginal stenosis के लिए हम क्या कहते हैं? Try the manual dilation by fingers or dilator. तो क्योंकि ये autoimmune disorder है लाइकन प्लेनिस, तो इसमें हम स्टेरॉइड देते हैं. स्टेरॉइड जो है इसको इसकी जो ऑटो इम्यून जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की है, उस इम्यून सिस्टम को स्टेरॉइड सप्रेस कर देंगे और दिस कंडीशन विल गेट बेटर. और ये जो वजाइनल स्टेनोसिस हुई है लाइकन प्लेनिस के अंदर, उसको हम मैनुअली डायलेट कर सकते हैं फिंगर्स को यूज़ करके, या फिर डायलेटर आता है, डायलेटर की मदद से भी इसको हम बेटा इसकी स्टेनोसिस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. आफ्टर द लाइकन प्लेनिस कम्स अनदर कंडीशन कॉल्ड बेटा द लाइकन स्क्लेरोसिस. लाइकन स्क्लेरोसिस इज द डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन. It's a destructive inflammatory skin condition of the vulva.
affects mainly the anogenital area of the woman, not only the genital, that means the vulval, but the anal area as well. ये इतनी कॉमन नहीं है. Incidence is only 1 in 300 women. I have delivered the pathology of the lichen sclerosis in detail, right? What are the causes? Just like, lichen planus, it is also an autoimmune disorder. Many patients have other autoimmune conditions such as the thyroid disease and the pernicious anemia. Lichen sclerosis का autoimmune origin होता है बेटा. ऑटोइम्यून ओरिजिन होता है और देखने को मिलता है कि एक इंडिविजुअल जिसको पहले से कुछ और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, वही इंडिविजुअल लाइकन स्क्लेरोसिस डेवलप करता है. पहले से कुछ और मौजूद हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि मुझे थायराइड की डिजीज़ है ऑटोइम्यून, या फिर पर्निशियस एनीमिया है जो कि ऑटोइम्यून होती है. सो आई कैन डेवलप द अनदर ऑटोइम्यून कंडीशन दैट इज़ द लाइकन स्क्लेरोसिस, राइट. सो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ lichen sclerosis on vulva? Yeah, let me tell you. So patient must be complaining of beta vulval pruritus, that is the itching, the soreness of the vulva due to the scratching. अब एक सिंपल सी ये रेडी फॉरवर्ड डील है. इट्स सिंपली अ रेडी फॉरवर्ड डील. देखें ये वल्वा है. Here is the condition called the lichen sclerosis, right? And in lichen sclerosis there is lots of itching in the vagina. अब इचिंग की वजह से जब तक पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलता तब तक क्या होगा? शी विल कीप ऑन स्क्रैचिंग हर वल्वा. सो शी विल कीप ऑन स्क्रैचिंग हर वल्वा. तो उसकी वजह से क्या होगा? सोरनेस आ जाएगी वल्वा के अंदर, ठीक है. द लाइकन स्क्लेरोसिस कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट एज फिगर ऑफ 8 पैटर्न अराउंड एनस, and there is hypopigmentation, loss of anatomy, vaginal stenosis and the cracking. So I don't think I need to really go into the crazy part of the lichen sclerosis. What you have to keep in your mind is lichen sclerosis is an autoimmune disorder. It may accompany with other autoimmune disorders like thyroid disease, pernicious anemia. If you suffer from lichen sclerosis of the vulva, you will be complaining of the vulval itching. And obviously due to itching there will be scratching, and due to scratching there will be soreness of the vulva. There will be hypopigmentation of the skin of the anogenital area. There will be the loss of the anatomy. There will be the vaginal stenosis पीछे भी थी lichen planus में, and there will be the cracking in the skin, right? What is the treatment of both lichen planus and lichen sclerosis? I already told you, the high dose topical steroids like the clobetasol propionate, right? Apply the pea-size cream of this steroid amount daily for 1 month and alternate days of the second month and twice a week third month. चाहे लाइकन प्लेनिस हो चाहे लाइकन स्क्लेरोसिस हो, उसमें आप हाई डोज स्टेरॉइड यूज़ करते हैं. और हाई डोज स्टेरॉइड जैसे कि क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट, और आपने पी साइज़ की ये क्रीम लेनी है और आपने इसको अप्लाई करना है अपने वल्वा पे जहाँ पे भी लाइकन स्क्लेरोसिस है या लाइकन प्लेनिस है. पहले महीने में आपने डेली लगाना है, लेकिन दूसरे महीने में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लगाना है, और तीसरे महीने में हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है. फर्स्ट मंथ के अंदर 30 के 30 दिन लगाना है. सेकंड मंथ में पहले दिन पे, फिर तीसरे दिन पे, फिर 5वें दिन पे. थर्ड मंथ में क्या करना है? वीक में 2 दफ़ा, ठीक है, इस तरीके से. दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा lichen planus. विल टॉक अबाउट नाउ द vulval cyst.